Good evening, ma'am. Mitali, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening, ma'am. How are you, ma'am? Good, good. Thank you. Can we join in 2 minutes time? Start in 2 minutes Yes. time? Yes, of course, ma'am. Just give me 2 minutes. Okay. My PPT. It's not visible, ma'am. I'm trying to share, ma'am. Just give me time. Okay. Acha, I'm not the presenter, I think, ma'am. Please make me the presenter. Yeah. Okay. Is my PPT visible, ma'am? Yes, ma'am. Okay. I'm Yes, changing the ma'am. slide. Is it okay? Yeah. Slide is Okay. changing. Slide is ending. Thank you. Please let me know, ma'am, when to start. I think we should start now. Even I am thinking. How many participants do we have? Right now, 178, near about 180. Just 2 more minutes.
Okay. ओके, कोई बात नहीं। Ma'am, now the participants are 200 plus. Sure, so we can start. Okay. So good evening, everyone. On the behalf of entire members of Aryavarta Sahodaya, I welcome you all on the 42nd online training. The topic is elements of classroom management, and our resource person is Mrs. Mitali Mukherjee ma'am, who is the principal of Millennium World School. So thank you so much, ma'am, for sparing your time, and we can now, I think we should start. Thank you so much, Simple Ma'am. Thank you, Aryavat Sahodaya, for giving me this wonderful opportunity to conduct this online training. See, today's training is actually a refresh, because more or less you will find that all these things we have done, but then we have done them individually. कभी मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्लास किया, कभी लर्निंग आउटकम वी डिड, कभी हम लोगों ने नार साइकिल किया, कभी हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट किया. लेकिन ये सब हम लोग किया क्यों? हमारा पर्पस क्या था इसको करने का? हमारा पर्पस यही था कि जब एज अ टीचर व्हेन वी एंटर द क्लासरूम, एज अ टीचर व्हेन वी एंटर द क्लासरूम, तब हमारे बच्चों को हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जो बताना हो बता सके. मान लीजिए मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ाना है, हमें पॉलिनोमियल्स पढ़ाना है, हमें एडवर्ब पढ़ाना है, व्हाटएवर यू वांट टू टीच इन द क्लासरूम, irrespective of your subject, you have to take care of all these things when you are teaching,
in order to optimize the learning process of the children. So today, I'm just going to revise with you that what are the small elements of classroom teaching, which as a teacher you should keep in mind. So if you keep these points in your mind, I'm sure your classroom delivery will improve. You'll become a better teacher. And most importantly, which cannot be ignored, is that your classroom learning will improve. आफ्टर ऑल हम क्लास में इतना मेहनत क्यों करते हैं, पढ़ाते क्यों हैं? इसलिए नहीं क्योंकि हमको बहुत मेहनत करना है, हमें अपने मेहनत के लिए गोल्ड मेडल मिलेगा प्रिंसिपल से, ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़ाते बच्चों को इसलिए हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम कॉपी करेक्शन करते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खड़े होकर क्लास लेते हैं. द पर्पस इज there's a lot of learning should happen. So I'm sure if you listen to this today's session properly, if you are able to incorporate certain things also in your classroom teaching, then it will definitely be a very, very successful classroom delivery. So please allow me to share my screen. And today we are going to do classroom elements of classroom teaching. I hope my PPT is visible to all of you. Okay. Yes, So ma'am. elements of classroom teaching. लेकिन मैंने ब्रैकेट में लर्निंग भी लिखा है. क्या रीजन है? क्या रीजन है कि हमने टीचिंग के बगल में लर्निंग भी लिखा है? कैन एनीवन से दिस? अभी मैंने आपको बताया, जरा देखती हूँ आप सच में मेरे क्लास में हैं, मेरे साथ हैं या मेरे साथ नहीं है. तो हमें ये बताइए कि क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ मैंने लर्निंग क्यों लिखा? व्हाट वाज द रीजन ऑफ राइटिंग लर्निंग? एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग हमारा आज का सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में छोटा सा एक लर्निंग लिखा है. इस लर्निंग को लिखने का पर्पस क्या है? कोई भी बता सकते हैं? प्लीज चैट कर सकते हैं. एनीवन? द क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. डू यू थिंक वहां मुझे लर्निंग लिखना चाहिए था? डू यू थिंक दैट लर्निंग वर्ड इज इंपॉर्टेंट देयर, या वो ऐसे ही लिखा हुआ यूजलेसली? क्यों लिखा हुआ लर्निंग वहां? Anyone? If you want to speak, you can speak also. You can unmute yourself and speak. Ma'am, two answers are there because Are there in the chat box? we experience while teaching. The second one is because teaching is also process of learning. Very good. Why I cannot see the chat box, I don't know. I'm not able to have access to the chat box. Anyway, Okay. thank you, Mukesh Simple Kumar Ma'am, for has sharing. written. We also learn during teaching. Mukesh Kumar has Very written. good. Very good. See, Reena ma'am has written, we have learned many things while the teaching also. Same the answer. Learning from students and processing it. Learning by doing. very good. We are learning Very, when we teach. very good. Teachers, very good. You've written wonderful answers. But what I want to say here is, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले 2 मिनट पहले आपको बताया, you are teaching very good, wonderful, you're an excellent teacher, no doubt. लेकिन आपकी टीचिंग को क्वांटिफाई कैसे किया जाता है? आपका प्रिंसिपल, आपके मैनेजमेंट, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे आपकी टीचिंग प्रोसेस को क्वांटिफाई कैसे करते हैं? क्वांटिफाई वो तभी करते हैं ना जब आपके बच्चों को नंबर आते हैं, जब आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा होता है, यानी जब लर्निंग होती है. सो becoming the best teacher in the world is meaningless until and unless you can create learning in the children. If the children are not learning, your teaching is a waste of time, isn't it? Don't you think so? So therefore, always remember, whenever you are teaching, ensure that learning is also happening. Teaching and learning are simultaneous processes. They have to happen at the same time. When you are teaching, the child should be able to learn. When the child is learning, that means you are teaching something. So हम teaching के पैर को quantify ही करते हैं learning से. अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो. जब भी आप कहेंगे कि I'm a teacher, I teach, तो वो definition अधूरा होगा. You should say I'm a teacher who teaches and my children learn. If that is not happening, your teaching is of no use. Okay. So first of all, let's try to understand what is teaching.
Elements of classroom teaching it is. What is teaching? When do you understand that teaching has happened? कैसे हम समझेंगे कि हाँ टीचर ने पढ़ाया, उसको 2 साल इस पे मेहनत किया, 1 साल मेहनत किया, 6 महीने मेहनत किया, बच्चे ने कुछ सीखा। हम कैसे समझते हैं कि बच्चे ने कुछ सीखा? तो सबसे इजी टेस्ट है ये समझने का कि बच्चे ने सीखा या नहीं, वो है अगर उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आती हैं, तब मम्मी मान सकते हैं कि द चाइल्ड has learned. There is some behavioral change in the child is happening. That means learning is happening. So if grades ka change is not teaching, when there's behavioral change, then we also you can think that learning is happening. And number 2 is teaching is always the sharing of ideas and experiences. देखिए वो जमाना चला गया जब हमारे बच्चे गुरुकुल में जाया करते थे और वॉट एवर द टीचर इज सेइंग वही उनके लिए अंतिम सत्य होता था। अब आज के जमाने में अंतिम सत्य वो है जो पेरेंट्स कहते हैं, और अंतिम सत्य उससे भी बड़ा वो है जो बच्चे कहते हैं। यानी टीचर इज नॉट अ पर्सन हु सिट्स हियर और वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट इज नॉट टीचिंग। टीचिंग एक्चुअली मीन्स व्हेन यू आर सिटिंग हियर, ठीक है आप ऊपर हैं, आप बैठे हैं, लेकिन जब आपको नीचे आना पड़ेगा, बच्चों के लेवल पे आना पड़ेगा, बच्चों के साथ आइडियाज एक्सचेंज एंड शेयर करने होंगे कि वो भी फील करे कि वो भी इंपॉर्टेंट है और आप भी फील करो कि आप भी इंपॉर्टेंट हो। यानी हम बच्चे को नीचे रखकर टीचिंग नहीं कर सकते। सो टीचिंग इज अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज। टीचर्स भी एक दूसरे से सीखते हैं, पीयर्स एक दूसरे से सीखते हैं, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं। दैट इज नोन एज टीचिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग। नाउ हम टीच तो करते हैं बच्चों को क्लासरूम में, वेरी गुड। हम बाहर भी, क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में भी टीच मेनी थिंग्स। इन द प्लेग्राउंड we teach many things to the children. In the laboratory you teach many things to the children. At home parents teach many things to the children. So how do children actually learn? You should understand this. अगर आप लर्निंग को समझेंगे तो आप इफेक्टिव टीचर्स हो सकेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसे कैसे सीख सकता है, तभी एज अ टीचर आप उसको वैसे वैसे सिखाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप एक ही तरीके से सिखा सकते हैं, वो है बुक चॉक एंड टॉक। और चॉक एंड टॉक इज एन ऑब्सोलीट मेथड। चॉक एंड टॉक यूज करके आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक कुछ चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट। यानी बच्चों की होलिस्टिक टीचिंग लर्निंग नहीं होगी, होलिस्टिक इंप्रूवमेंट नहीं होगी। हम बार बार बोलते हैं ना चहुमुखी विकास, होलिस्टिक इंप्रूवमेंट, होलिस्टिक इंप्रूवमेंट, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। इसका मतलब क्या है? अगर आप होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देना चाहते हैं, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड देना चाहते हैं, तो आपकी टीचिंग में 360 डिग्री होनी चाहिए और बच्चों की लर्निंग भी 360 डिग्री होनी चाहिए। सो हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली जगह, सबसे आराम से हमारा बच्चा सीखता है, सबसे पहले बिहेवियर। दैट इज द फर्स्ट की टू लर्निंग। यानी अगर आप किसी बच्चे को एक एक 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, आप अगर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे तो आप बच्चा भी आपको देखकर मुस्कुराएगा। अगर आप उसको थप्पड़ दिखाएंगे तो वो हो सकता है डर जाए, या हो सकता है आपके पास ही नहीं जाना चाहे। अगर आप इस छोटे से 2 साल के बच्चे का भी कभी टेस्ट कर देखेगा, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया, फिर भी अकेले में कभी टेस्ट करिएगा, उसकी पैंट खोल देंगे अगर आप, तो वो रोने लगेगा। चाइल्ड विल स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि उस टेंडर से उम्र में भी उसे अपनी इज्जत का, अपनी सेल्फ एस्टीम का बहुत ख्याल है। और आपका बिहेवियर से जो उसका रिस्पॉन्स होता है, दैट इज ऑल्सो लर्निंग प्रोसेस। यानी अगर घर में पेरेंट्स बहुत ज्यादा दिन भर चिल्ला ही रहे हैं तो बच्चा भी जोर से बात करेगा, क्योंकि वो पेरेंट्स की आवाज के ऊपर अपनी आवाज को रखना चाहता है। तो बच्चे को जोर जोर से बोलने की आदत हो जाएगी, उसकी लर्निंग हो गई जोर जोर से बोलने की। अगर पेरेंट्स हाई वॉल्यूम पे टीवी चला के देख रहे हैं, बच्चे को जोर से सुनने की आदत हो जाएगी। मतलब जब तक आप उसको जोर से नहीं बोलिएगा, चिल्ला कर नहीं बात कीजिएगा, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। हम कहते हैं ना बहुत ढीठ बच्चा है, चिल्लाओ तभी सुनता है। What has happened? His behavior has become like this. Maybe something in the childhood has happened which has made transformed his behavior. अगर आप बच्चे को हमेशा 2 थप्पड़ मार कर ही बात करेंगे तो 2 थप्पड़ मारने के बाद ही वो सुनेगा, वो उसके पहले सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा थ्रेशोल्ड लेवल थप्पड़ खाना ही है। तो whatever behavior you expose the child to, the child starts learning in that way. So it is very important. You must have heard NEP saying that early childhood care and intervention is very important. Family atmosphere is very important. The child even learns in the mother's womb. जब वो जन्म नहीं लेता तब भी वो सीखता है. So that environment is very, very important. Next, the child learns through cognitivism, यानी knowledge. आप बच्चा क्लास में गया, उसको कुछ सिखाया, देखो 5 + 5 = 10, 1 + 1 = 2, a² + b² = this, parts of a plant is this,
एडजेक्टिव मीन्स दिस, प्रोनाउन मीन दिस। बच्चे को सिखाया, नॉलेज दिया, उस नॉलेज की बदौलत बच्चे ने कुछ सीखा। हाँ, टीचर इज टॉट दिस, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, वह वैसे होता है, 5 रिलेटेड सम्स बना लेगा, क्वेश्चन आंसर्स कर लेगा, ड्राइंग कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज दैट यू गिवन। लेकिन यही बात खत्म नहीं हो जाती, फिर बच्चा उस नॉलेज के बेसिस पे कुछ कंस्ट्रक्ट करता है। यानी आपने बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बता दिया, फिर बच्चे ने खुद से ए बनाया, लिखा, बच्चे ने गाड़ी बनाई, बच्चे ने सर्कल बनाया, बच्चे ने ये किया, बच्चे ने वो किया। Everything you have not taught the child in the class. There are certain things that the child constructs on his own. जैसे मान लीजिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे घर दिया, गिफ्ट किया और उसकी बुनियाद बना दी, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये जरूरी तो नहीं है कि वो बुनियाद का स्ट्रक्चर और फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर, सेकंड फ्लोर का स्ट्रक्चर, थर्ड फ्लोर का स्ट्रक्चर सेम हो, ये जरूरी नहीं है। हम अपने अपने दिमाग को यूज करके, अपने पैशन को यूज करके, अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, वी कैन चेंज द डिजाइन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, वी कैन चेंज द डिजाइन ऑफ द सेकंड फ्लोर फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। So this is called constructivism. When the child constructs the knowledge to a higher level, वो खुद सोचता है, समझता है और चीजों को अलग दिशा में ले जाता है। ठीक है, नाउ उसके बाद उस बच्चे के जीवन में एक्सपीरियंसेस आने शुरू होते हैं। जैसे यू बिकेम अ टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला साल जो आपका टीचिंग का जो आइडिया था, जो मेथड था, क्या आज भी वही है? 10 साल बाद, 15 साल बाद, you have changed. Who has changed you? Your experiences have changed. So through experiences also we learn a lot. And finally, we learn from others. Social and contextual learning. मान लीजिए आज मैं बिहार में हूँ, आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, अगर कल मुझे यही सेशन मुंबई में लेना पड़े तो हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत मराठी यूज करना पड़ेगा, बंगाल में लेना पड़े तो उसको थोड़ा बंगाली यूज करना पड़ेगा, यही सेशन मुझे अमेरिकन के लिए लेना पड़े तो मुझे कंप्लीट इंग्लिश रखना होगा, हिंदी नहीं बोल सकती। तो सोशल एंड कॉन्टेक्चुअल लेवल पे हमारी लर्निंग चेंज होती है। मैंने खुद सोचा कि नहीं अमेरिका में सेशन है भैया, मैं हिंदी नहीं बोल सकती, पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड, मुझे इंग्लिश में ही बात करनी होगी। दिस इज माई सोशल एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। सो याद रखिएगा टीचर्स, बच्चे 5 तरीके से सीखते हैं। उनके आस पड़ोस की बिहेवियर कैसी है, what is the knowledge you're giving the child in the classroom, then the child constructs that knowledge to another, extrapolation of knowledge happens, मतलब एक लकीर आपने खींच दी, बच्चा उस लकीर को और आगे बढ़ाता है, extrapolation of knowledge, then the child learns through his or her own experiences, and finally the child learns through social and contextual levels. हम कहते हैं ना बच्चा घर में तो बदमाशी नहीं करता मैम, स्कूल में क्यों करता है? क्योंकि उसको सोशल ग्रुप मिलता है, अपने हम उम्र की सोशल ग्रुप, जहां पे रहकर वो अपने आप को ज्यादा बलवान समझने लगता है, ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगता है, ज्यादा ताकतवर समझने लगता है, एंड द चाइल्ड डज क्रिएट्स ऑल काइंड्स ऑफ न्यूसेंस मे बी। सो रिमेंबर, और वही बच्चा हो सकता है एक्स सर की क्लास में बहुत शांति से बैठा रहता है, वाई सर की क्लास में थोड़ा ज्यादा बदमाशी करता है। क्यों एक्स एंड वाई के बिहेवियर में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो बच्चा समझ जाता है, अरे वाई वाले सर तो है ना बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, चलता है उनकी क्लास में इतना, और एक्स वाले सर तो नजर घुमा दो इधर से उधर तो भी डांट देते हैं, तो भी पनिश कर देते हैं, तो बच्चा समझता है। आप अपने स्कूल में देखते होंगे, when the principal is around everybody is quiet, the moment the principal disappears children's there is certain change in the mood। पीएचई टीचर रहता है तो बच्चे डरे हुए रहते हैं, कुछ कुछ सीनियर टीचर्स होते हैं, जूनियर में भी एक आध टीचर ऐसे होते हैं जो अगर घूमेंगे तो बच्चे शांत हो जाएंगे, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके रहने के बावजूद भी बच्चे हल्ला करते हैं, फुल 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 दम पे हल्ला करते हैं। So this is social and contextual knowledge। ठीक है, so these are the ways of learning। यानी you are a teacher, you have to understand कि आप स्कूल का बिहेवियर, आप अपना बिहेवियर, क्लासरूम का बिहेवियर ऐसा बना के रखें कि मेरे बच्चे अच्छी चीजें लर्न करें। आप ऐसी नॉलेज दें कि मेरे बच्चे अच्छा नॉलेज गेन करें। आप उनके मेंटल ब्लॉक्स को खोलने की कोशिश करें ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। आप उनको अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस दें in a school, in the classroom, as a teacher, so that they are happy to learn. And of course, the social and contextual atmosphere should also be good enough. Next, मैं इस पे आऊंगी बाद में। Now, in a classroom, always remember that ये triangle होता है। क्या triangle है? हमारे जो भी learning outcomes है वो हम कैसे अचीव करते हैं? थ्रू द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। देखिए डबल साइडेड एरो है, यानी जब हम टीचिंग कर रहे हैं लर्निंग भी होनी चाहिए, अदरवाइज ये वन साइडेड ही रहता। फिर जो लर्निंग आउटकम्स है उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट से,
और ये टीचिंग, लर्निंग और टेस्टिंग, इसके लिए क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं. जैसे हम टीच कर रहे हैं बच्चे को, तो कुछ मेथड होगा ना पढ़ाने का. चॉक एंड टॉक मेथड, लेक्चर मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, डिबेट मेथड. कौन सा मेथड आपने यूज किया? सिमिलरली व्हेन यू आर टेकिंग एन असेसमेंट, उसकी भी कुछ मेथड्स होती हैं. लाइक पेन एंड पेपर टेस्ट दिया मैंने, या मैंने एक रेसिटेशन कंपटीशन करा दिया, या मैंने एक डांस कंपटीशन कराया. हाउ डिड आई टेस्ट द चाइल्ड? हाउ डिड आई असेस द चाइल्ड? So remember that some learning outcomes, there are some intended learning outcomes, and those learning outcomes can be achieved either through teaching learning activities or through assessment, and for this we have methods. Okay, now I hope I don't have to go in details in this. I've taken many sessions on this, learning outcomes versus learning objectives. Outcomes are for a long term. हमारा लर्निंग आउटकम क्या है? हमारा लर्निंग आउटकम है टू मेक हैप्पी इंडिविजुअल्स. मैं बहुत बार आप लोगों से पूछ चुकी हूँ ये कि पढ़ाई, एजुकेशन का पर्पस क्या है? एजुकेशन का पर्पस ही है टू मेक समबडी हैप्पी, टू लीड अ हैप्पी लाइफ. आप बच्चे को तैयार करते हैं कि वो आगे चल के अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सके, उसे कोई तकलीफ नहीं हो. और वो खुशी कुछ भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, नॉन मटेरियलिस्टिक हो सकती है, वट एवर इट इज. वो बच्चे टू बच्चा, चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करता है. So the purpose of education is to make somebody happy, to make somebody complete, to bring a behavioral change in the child. Okay, that is the purpose of education. So these are the learning outcomes. And objectives का मतलब आज जो मैं आपको अभी 1 घंटे का सेशन ले रही हूँ, मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द टीचर्स अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग. ये ऑब्जेक्टिव मतलब टुडे, आज एक 40 मिनट के पीरियड का, 50 मिनट के पीरियड का, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव. एंड वॉट एवर, चाहे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो चाहे लर्निंग आउटकम हो, आपको याद रखना होगा कि दे हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट? स्मार्ट, S for specific, M for measurable, A for attainable, R for realistic, and T for time bound. So your learning outcomes must be like this. अच्छा, आप ये लर्निंग आउटकम्स लेंगे कहाँ से? अगर आप एक नए नए टीचर बने हैं और आपको लर्निंग आउटकम बनाना है, तो लर्निंग आउटकम के लिए ये चार्ट है. ये चार्ट भी मैं बहुत बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ. ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की चार्ट है. जैसे मैं ब्लूम्स कहते हैं कि हमारे दिमाग के 6 लेवल्स होते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन. अगर आप नॉलेज लेवल पे बच्चों को कुछ नॉलेज देना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए वर्ड्स डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब. आप बच्चों को समझाना चाहते हैं तो ये वर्ड्स हैं. अप्लाई तो ये वर्ब्स हैं. एनालाइज तो ये वर्ब्स हैं. इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन के वर्ब्स आपके सामने हैं. यानी आपके ऊपर एज अ टीचर, आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे के दिमाग को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं. आप सिर्फ उसमें नॉलेज ठूसना चाहते हैं, या आप अंडरस्टैंडिंग भी कराना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन भी सिखाना चाहते हैं, आप एनालिसिस भी सिखाना चाहते हैं, आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, और आप बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एक उड़ता हुआ जहाज बना दे, एक उड़ती हुई गाड़ी बना दे, या एक्स बना दे, कैंसर का इलाज खोज दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कैसे सीखेगा बच्चा क्रिएट करना? क्लासरूम में आपको सिखाना होगा हाउ टू क्रिएट. सो जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो उसमें आप क्वेश्चन दीजिए, डिजाइन द मॉड्यूल, डिजाइन समथिंग लाइक दिस, मॉडिफाई द कैरेक्टर, डू द रोल प्ले. इस टाइप के सवाल जब आप पूछते हैं तो बच्चे में ये स्किल डेवलप होता है. ठीक है, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा क्लास का. यानी पहला एलिमेंट हमारा क्या हुआ? व्हाट डिड वी लर्न? पहला एलिमेंट हमारे क्लासरूम टीचिंग का क्या हुआ टीचर्स? कि सबसे पहला एलिमेंट हमारे क्लासरूम टीचिंग का ये है कि हमें अपने क्लासरूम के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे जो स्मार्ट हो. और जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ध्यान रखेंगे, और जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऐसा ही होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस. यानी मैंने एक नॉलेज लेवल का लर्निंग आउटकम बनाया. स्टूडेंट शुड बी एबल टू समराइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये मैंने अंडरस्टैंडिंग लेवल का बनाया. स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्कवर whether red color leaves can conduct photosynthesis or not. Students should be able to compare and contrast between green plants and red leafy plants. Students should be able to judge which kind of plant has more photosynthesis abilities, the red colored plant or the blue color leaf plant. Students should be able to design a process where the red leaves can also photosynthesize. बच्चा सोचेगा अगर रेड लीफ में ये डाल दो तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो रेड लीफ में ये केमिकल स्प्रे कर दो, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेगा. उसने सोचा, इजाद है उसकी, उसका इन्वेंशन है. So this is how you create your learning objectives. Second element, this is element number 2.
यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप किसको पढ़ाने जा रहे हैं। आप अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, लैटिन में, रोम में पढ़ा रहे हैं, इटली में पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हो? You are teaching the 21st century learners. 21st century learners की खासियत क्या है? They have a very short attention span. They crave to interact. बात करना चाहते हो। क्लास में आप देखते हो सारे बच्चे बात करना चाहते हैं। क्लास इज वेरी नॉइजी और टीचर को 50 बार कहना पड़ता है कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, आई विल पनिश यू, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। सारी एनर्जी टीचर की उसी में खत्म हो जा रही। द 21st century learners read visual images, यानी अगर आप उनको बोलकर कुछ समझा रहे हैं, ऑडिटरी वो लर्नर्स नहीं है, दे आर विजुअल लर्नर्स। आप उनको कुछ दिखाओगे जैसे स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह, तो दे लर्न बेटर। दे हैव वीक रीडिंग स्किल्स बट दे हैव ग्रेट विजुअल स्पेशियल स्किल्स, यानी देखकर वो बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। एंड द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी फास्ट। क्वेश्चन खत्म नहीं होता, बच्चे का हाथ उठ जाता है, मैम, सर। बहुत सब हम लोग कहते भी है ना बच्चों को, अरे बेटा क्वेश्चन तो सुन लो तब तो आंसर दोगे। तो आप गुस्सा मत होइए, आप डांटिए मत। ये 21st सेंचुरी बच्चों की ये क्वालिटीज हैं, आप उसको क्वालिटी ही मान के चलिए। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि आपका क्लासरूम भी वैसा ही होना चाहिए। आप पढ़ाने जा रहे हैं 21st सेंचुरी के बच्चों को और आपकी सोच 18वीं सदी की है, तो दोनों में मिसमैच हो जाए। और जब मिसमैच हो जाएगा तो बच्चे आपसे हैप्पी नहीं होंगे और आप बच्चों से हैप्पी नहीं होंगे। तो आप दोनों को जेल करना है एक दूसरे के साथ। उनकी थॉट प्रोसेस, आपके थॉट प्रोसेस जेल होना चाहिए। इसलिए जो टीचर होता है ना, वो टीचर हमेशा आगे का सोचता है, पीछे का नहीं सोचता। आप 20वीं सदी के टीचर है, लेकिन आप 21वीं सदी की तरह सोचेंगे। आप 21वीं सदी के टीचर होंगे तो आप 22वीं सदी की तरह सोचेंगे। देन यू विल बी कॉल्ड अ टीचर, अ वेल रेड एडवांस टीचर। अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे, आपके बच्चे आगे भाग जाएंगे। और जब बच्चे दिशाहीन होकर भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, कैसे भागेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑल मेस। सो हमारा जो 21st सेंचुरी क्लासरूम होता है वो ऑनलाइन होना चाहिए, क्लाउड में होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए। BYOD मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस होना चाहिए। PBL मतलब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन दो, उसको वो प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन दो। एक सोल्यूशन विल नॉट वर्क फॉर एवरीबॉडी। ये है आपका इफेक्टिव क्लासरूम का टिप नंबर 2। बी मल्टीलिंगुअल, बी इंटरैक्टिव, फोकस ऑन ऑनलाइन टीचिंग ऑल्सो, हाइब्रिड मोड में अपनी क्लासेस को चलाइए एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की तरफ फोकस करिए। नेक्स्ट, अदरवाइज अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपका क्लासरूम हो जाएगा ऐसा। चाहते हैं आप कि आपका क्लास ऐसा हो? आई एम श्योर आप नहीं चाहते। कुछ बच्चे कहेंगे भैया उठा देना, जब मैम चली जाएंगी तो, जब सर चले जाएंगे तो, खत्म हो जाएगा तो उठा दें। आप ऐसा नहीं चाहते ना, तो इसलिए आपको छोटी छोटी ये चेंजेस अपने क्लासरूम टीचिंग में लानी होगी। नंबर 3, दिस इज द एलिमेंट नंबर 3। व्हाट इज एलिमेंट नंबर 3? एक क्लास में घुसते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रिंसिपल हूँ, हम लोग राउंड लेते हैं, तो एक क्लास में घुसने के बाद कैसे समझ में आएगा हमें लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही, whether learning is happening or not? हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इफ यू आर एन इफेक्टिव टीचर, अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपका बच्चा हमेशा एंगेज रहेगा क्लास में। अदरवाइज आपके बच्चे आपस में बात करेंगे, पीछे मुड़ेंगे, आगे मुड़ेंगे, कुछ अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे। हिंदी की क्लास में मैथ्स बनाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे मैथ्स की क्लास में हिंदी बनाते हैं, वाइस वर्सा। कुछ बच्चे हमेशा किसी पीरियड में पीछे चले जाते हैं, जानबूझकर पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनको बात करना होता है, क्योंकि उनको दूसरे को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि उनको क्लास से कोई मतलब नहीं, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता क्लास उनको। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट क्लासरूम एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट यही है that your children should be engaged. Keep your students engaged in the classroom so that they learn and they show positive behavioral changes, which is the purpose of learning, which is the purpose of teaching, isn't it? ये positive behavior change होना चाहिए। तो इसके लिए टिप नंबर 3 है कि अपने बच्चों को एंगेज रखिए। अब एंगेज कैसे रखना मुझे नहीं पता, वो आपको सोचना होगा कि एंगेज कैसे रखना है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, कभी भी आपके घर में भी देखा होगा, स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा फील करते होंगे। आपके घर में बहुत कच 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 हो रहा है, खाना का टाइम हो गया, एवरीबडी इज ऑन द डाइनिंग टेबल और एवरीबडी इज सिटिंग समवेयर, और बहुत गप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अचानक मम्मी खाना का प्लेट लाती है, और जैसे ही माँ खाने का प्लेट लाती है, कंप्लीट शांति हो जाती है क्लासरूम में, घर में, सॉरी, क्योंकि हम लोग सब खाने में बिजी हो जाते हैं। तो सिमिलरली अगर आप चाहते हैं आपका क्लासरूम वेल डिसिप्लिन रहे, आपकी क्लास में बच्चे आपकी बात सुने, आपका क्लास अच्छा चले, तो आपको अपने बच्चों को एंगेज रखना होगा।
Next, number 4, there are some components of classroom management जो आपको याद रखना है. पहला कंपोनेंट क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट. अगर आप वाकई एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लासरूम बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो, काम चले, तो रिमेंबर, कंटेंट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस टीचर के पास कंटेंट नहीं होता है, लाख वो टेक्निक सीख ले, उसका क्लासरूम वेल मैनेज नहीं होगा. सो योर कंटेंट इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर अ गुड क्लासरूम मैनेजर. ओके, नेक्स्ट इज कंडक्ट मैनेजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपके कंटेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन आप बहुत रूड हैं, आप बच्चों के साथ खराब से बिहेव करते हैं, आपके प्रोसेसेस क्लियर नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता. कभी आप चौक उठाकर लिखने लगते हैं, कभी आप स्मार्ट बोर्ड चलाने लगते हैं, कभी आप आगे चले जाते हैं, कभी आप पीछे चले जाते हैं. यू आर नॉट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट टू डू. देयर इज डिसिप्लिन इशू इन योर क्लास. कंडक्ट इज नॉट प्रॉपर. दिस इज नॉट एज कंडक्ट मैनेजमेंट. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके क्लास के इंटरनल माहौल क्या है. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये बात कि व्हाट इज स्कूल. स्कूल इज अ स्मॉल कम्युनिटी जहाँ पे कुछ बच्चे, हर कास्ट के बच्चे हैं, हर क्रीड के बच्चे हैं, हर टाइप के फैमिली के बच्चे हैं. डाइवर्सिफिकेशन है सो मच. यानी आप अगर गौर से देखें तो स्कूल में सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट का कोई ना कोई बच्चा है. सो स्कूल इज अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी. और उस कम्युनिटी के एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा बनाए रखना, बहुत कंजीनियल बनाए रखना, बहुत हंसमुख बनाए रखना, लोग एक दूसरे से जेल करें, लोग एक दूसरे के बारे में बुरा ना बोले, बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर रखना इज अ थर्ड चैलेंज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. अगर आपके क्लासरूम का सोशल सिस्टम, if it is not up to the mark, then please understand that teaching and learning will not happen to the maximum. आपकी क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी. सो रिमेंबर, कोवेनेंट मैनेजमेंट मींस टू मेंटेन द सोशल सिस्टम इन माय क्लासरूम. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Unplanned teaching and learning is a recipe of wasting time. This is another सबसे important, I think, the element of classroom teaching, that never go to your class unplanned. Remember, never go to your class unplanned. Because if you go to your class unplanned, you are actually wasting the time of 40 students. और 40 आपको मिलते हैं करीब 30 मिनट या 40 मिनट अपने क्लास में, यानी 30 into 40 यानी कितना हो गया? 3 into 4 12 0 1200 मिनट आपने वेस्ट किया. सोसाइटी का 1200 मिनट आपने वेस्ट किया. मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई क्राइम हो सकता है. आप अगर प्लान नहीं है ना, तो आप मत लो क्लास, किसी और को दे दीजिए जिसकी प्लानिंग है. बट इफ यू आर एंटरिंग एनी क्लास, नो मैटर आप सालों से जाते हैं उस क्लास में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका आपका classroom should be planned. And when I say planned, what do I mean? I mean the curriculum planning. I mean the lesson planning. Curriculum planning मतलब पूरे साल की planning. And lesson planning मतलब आज की planning. Lesson planning should always be period wise. आज की planning. So आप curriculum को plan करें, आप lesson को plan करें, और unplanned classroom में कभी नहीं जाए. This was the next element. Now, if you really want to become an effective teacher, remember, you should be a master of this. You should be a master of your content. You should be well prepared. You should be enthusiastic. You should be warm and approachable, alert and watchful, firm, reasonable, fair and consistent. आज बहुत अच्छा पढ़ाया तैयारी करके, कल फिर आकर बैठ गए. बच्चों क्या पूछना है पूछो, अपना पेंडिंग वर्क करो, कॉपी चेक है कि नहीं दिखाओ. आज तो बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन कल परसों तरसों फिर हम नीचे आ गए. फिर एक दिन हमने तैयारी की, फिर थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाया. तो कंसिस्टेंसी नहीं है. Consistency is very, very important. Have a clear and well moderated speech. मैंने बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए effective communication skills पे. So remember that a good teacher has got wonderful communication skills. So what content management आ गया इसमें, covenant management आ गया, conduct management आ गया, ये सारी चीजें आ गई, तभी आप एक effective teacher कहलाओगे. Now, very, very important, and this is my personal favorite, आपने ये सारी बातों का ध्यान रखा, बहुत अच्छा पढ़ाया, व्हाटएवर जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप
अपने क्लास के आपके जितने भी बच्चे हैं सब पे ध्यान देते हो। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनकी स्टैंपिंग हो जाती है कि वो बहुत बायस टीचर्स हैं, वो सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सिर्फ एक सर्टन सेट ऑफ बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में। पता है क्यों? आप नहीं चाहते फिर भी आप बायस्ड क्यों कहला जाते हैं? आप नहीं है बायस्ड, अब फिर भी लोग आपको बायस्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लर्निंग स्टाइल पे फोकस नहीं करते। शायद आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी क्लास में 4 टाइप के लर्नर्स हैं। 40 बच्चे हो तो भी हैं, 20 बच्चे हो तो भी हैं, 10 बच्चे तो भी हैं। There are 4 types of learners in your classroom. Who are these 4 types of learners? Number one is visual learners. Visual learners. Number 2 is auditory learners. Number 3 is read write learners. And number 4 kinesthetic learner. तो हमारा विजुअल लर्नर कौन है? जिसको देखिएगा, दिखाइएगा कुछ तभी वो समझेगा। अगर हम कहेंगे देखो साड़ी होती है 5 मीटर का कपड़ा होता है, उसमें बहुत सारे डिजाइन बने रहते हैं, उसको हम लोग पहनते हैं, तो क्या उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये साड़ी ले जाकर उसको दिखाइएगा तभी उसको समझ में आएगा, या साड़ी की फोटो दिखाइएगा, साड़ी का वीडियो दिखाइएगा तभी उसको समझ में। दूसरा ऑडिटरी लर्नर, जो सुन के समझ जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अपने क्लासरूम में चॉक एंड टॉक करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे ऑडिटरी लर्नर्स, क्योंकि आपके टॉक से उनको समझ में आ जाता है, आपके लेक्चर मेथड से वो समझ जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपके क्लास में रीड एंड राइट लर्नर्स। सुना हुआ दीज रीड एंड राइट लर्नर्स? रीड एंड राइट लर्नर्स वो होते हैं जो कहते हैं कि मुझे कुछ लिखने दो, मुझे कुछ पढ़ने को दो, तभी हमको समझ में आएगा। उनको थोड़ी रीडिंग कराइए क्लास में, उनको बोर्ड पे बुलाकर लिखवाइए, उनसे वर्कशीट्स करवाइए, उनको रिटर्न वर्क दीजिए, उनको कॉपी मॉनिटर बना दीजिए, दे विल डू वेरी गुड। एंड फाइनली काइनेस्थेटिक लर्नर, जो सबसे डिफिकल्ट काइंड ऑफ लर्निंग मानी जाती है टीचर्स के लिए, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना, वो विजुअल भी नहीं समझते, ऑडिटरी भी नहीं समझते, रीड एंड राइट भी नहीं समझते। इनका कहना है कि जब तक तुम मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं दोगे, डेमो नहीं दिखाओगे, करके नहीं बताओगे, मैं नहीं समझू। तभी टीचर बेचारा बहुत सोच में पड़ जाता है। मान लो टीचर पढ़ा रहा है औरंगजेब के बारे में, अब टीचर कहता है चलो औरंगजेब की फोटो तो दिखा दी, औरंगजेब के बारे में कहानी सुना दी, औरंगजेब के बारे में 4 लाइन लिखवा भी दिया, फिर भी काइनेस्थेटिक बच्चा नहीं समझना है कि औरंगजेब है, मैं औरंगजेब कहां से लाऊं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोल प्ले। यस, यू हैव टू गो फॉर रोल प्ले। आप क्लास में किसी को औरंगजेब बनाना पड़ेगा, उसको 2-4 डायलॉग्स देने पड़ेंगे, तब जाकर वो काइनेस्थेटिक बच्चा समझेगा अच्छा तो ऐसे औरंगजेब काम करता था। getting my point? So role play, theater, mime, ये बहुत strong methods हैं for kinesthetic learners. आप डेमो ले जाते हो, साइंस लैब में ले जाते हैं, आप डेमो देते हैं, बच्चा नहीं समझेगा, आप उसको भी दो करने के लिए। When the child will do, the child will learn. आप गेम्स, आप क्लासरूम में बैठ के बता दीजिए खो खो में इतने प्लेयर्स होते हैं, इतने बाई इतना का कोर्ट होता है, उसको नहीं समझ में आया, जब आप जाकर उसको खो खो खिलाइएगा तो आप देखिएगा बहुत अच्छा खेल रहा होगा, क्योंकि वो काइनेस्थेटिक लर्नर है। जब आप करवाएंगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी आप कोई भी लेसन पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लर्निंग स्टाइल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे को उसकी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ाएं, यानी आप कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़े बहुत विजुअल एड्स आर अ मस्ट। चॉक एंड टॉक तो आप करते ही हैं, कुछ रीड राइट कंटेंट डालिए, एंड कुछ लर्निंग बाय डूइंग यानी काइनेस्थेटिक्स डालिए। So if all these 4 elements are present in whatever topic you're teaching, of course in every topic that you teach, then I think आपकी results आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, results will come, क्योंकि आपने सारे तरीके के learning styles पे focus किया है। नॉर्मली हम ऑडिटरी पे फोकस करते हैं तो हमारा रिजल्ट कम आता है। आपको ये बता दो, विजुअल लर्नर्स 60% होते हैं, सबसे ज्यादा किसी क्लासरूम में विजुअल लर्नर्स होते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स 30% होते हैं, तो 60 + 30 90 हो गया। अभी ये 10% जो बचा उसमें रीड राइट एंड काइनेस्थेटिक होते हैं, सबसे कम होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको इग्नोर करो, इग्नोर करेंगे तो 100% रिजल्ट नहीं आएगा। हमें तो बोर्ड में 100% रिजल्ट चाहिए। सो ये भी नहीं, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं विजुअल लर्नर हूं फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑडिटरी रीड राइट काइनेस्थेटिक से नहीं समझती, लेकिन मैं सबसे अच्छा बेस्ट आई कैन अंडरस्टैंड when the teacher goes to visual methods. So these are the best possible things. Next very very important element of classroom teaching is multiple intelligences. Now what is multiple intelligence? Multiple intelligence means, what is intelligence first? Anybody?
Who can tell me what is intelligence? Simple, ma'am. Just check out if somebody writes anything for intelligence, then I'll be very happy. What is intelligence? What is the meaning of intelligence? Anybody? What is the meaning of intelligence? Anybody? Dear What is the meaning of participants, intelligence? Yes. Anybody has written anything? not it, ma'am. क्या समझते हैं आप? इंटेलिजेंस का मतलब क्या समझते हैं? जो भी आप इंटेलिजेंस, हम लोग कहते हैं ना, बहुत कॉमनली Yes, यूज नहीं yes. करते इस वर्ड को. Pushpa ma'am has written knowledge of many skill. नॉलेज ऑफ मेनी The स्किल्स इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. अच्छा, जब आप कहते हैं कि बच्चा can बड़ा do that इंटेलिजेंट work है, smartly. very, Priya ma'am has written. very, Kajal ma'am has written ability, understand, think. very good, Mausam has written, Mausam sir or ma'am, smart, only smart. very good. Okay, Way of understanding, Neha Sama. thank Using you. I sense think which is suitable for situation, Rasmi Kumari. thank you, ma'am. Thank you. I think we can go ahead with these answers. Thank you so much, dear teachers, for contributing Intelligence is your ability answers. to learn. Okay, ma'am. I think we can stop there and go ahead. Yeah. Thank ये you, बहुत कॉमन, participants. बहुत कॉमन कमेंट है. ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ये उतना इंटेलिजेंट नहीं है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है. बहुत कॉमनली हम लोग कहते हैं. आज से अगर मेरे सेशन से एक इनपुट आपको लेना हो तो ये इनपुट ले लीजिए कि रिमार्क एब्सोल्युटली गलत है. ये रिमार्क हमें किसी को देना ही नहीं है, ये गलत रिमार्क है. टेक्निकली यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग व्हेन यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस. तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? जब गलत मैंने बोला है तो मैं सही भी बता दूं आपको. अगली बार से जब आप किसी बच्चे को इंटेलिजेंट कहेंगे तो ये कहेंगे, ये बच्चा बॉडी स्मार्ट इंटेलिजेंट है, ये बच्चा पीपल स्मार्ट इंटेलिजेंस है, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसका बहुत हाई है, इसका वर्बल लिंग्विस्टिक बहुत हाई है, इसका लॉजिकल मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत हाई है, ये बच्चा लॉजिकली बहुत इंटेलिजेंट है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है इसके अंदर, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस आप ये कह सकते हैं. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे इंटेलिजेंट है. ये तो वैसी बात हुई ना, तुमने क्या खाना खाया? मैंने खाना खाया. फिर से सुनिएगा, मैंने सवाल किया तुमने क्या खाना खाया, और आपने जवाब दिया मैंने खाना खाया. ये जवाब नहीं है. हमने पूछा तुमने क्या खाया, आपने ये नहीं बोला कि मैंने दाल खाई, सब्जी खाई, भरता खाया, आपने बोला मैंने खाना खाया. सो इट्स अ वेग आंसर. सो इंटेलिजेंट वर्ड इटसेल्फ इज वेग. इंटेलिजेंट मीन्स एबिलिटी टू लर्न. इंटेलिजेंस का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग खोजेंगे या गूगल मीनिंग खोजेंगे तो आपको मिलेगा एबिलिटी टू लर्न. लर्न करने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं. लेकिन हर इंसान के लर्न करने की क्षमता प्रोसेस पे डिपेंड करता है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मैं सिंपल मैम से कहूं कि सिंपल मैम एक कप चाय बनाकर पिलाइए, आप में से बहुत सारे टीचर्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपके स्कूल जाऊंगी, आपके घर जाऊंगी तो आप जरूर मुझे एक कप चाय तो ऑफर करिएगा ही. मान लीजिए 10 लोगों की चाय में लेकर आऊं और कप प्यालियां लगा दूं और 10 की चाय पीऊंगी, तो 10 की चाय अलग होगी या नहीं, ये बताइए. सबकी चाय अलग होगी, यस. लेकिन आप सबने तो यूज वही किया होगा ना, चाय पत्ती, दूध, चीनी. तो सबकी चाय अलग क्यों है? बिकॉज चाय जो नेट रिजल्ट है, जो नेट टेस्ट है, वो डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर. आपने कितना दूध डाला, आपने कितने देर गर्म किया, आपने कितनी चीनी डाली, आपने कौन सी चाय पत्ती यूज की. सिमिलरली रिमेंबर, लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. अगर कोई बच्चा म्यूजिकल स्मार्ट है तो उसका मतलब ये है कि दुनिया की कितनी भी मुश्किल चीज हो, अगर आप उसे गाना गाकर समझा दोगे या म्यूजिक के थ्रू समझाओगे, बहुत आसानी से सीख लेगा. लेकिन अगर हम उसी को इंटरपर्सनल तरीके से सिखाएं, यानी कुछ बोलकर आपस में डिस्कशन करके, उसको नहीं समझ में आएगा. तो क्या हम ये कहेंगे कि म्यूजिकल वाला बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है? ये कितना गलत कमेंट है. अब आपको समझ में आ रहा होगा. गलती हमसे हो जाती है कि हम उसकी इंटेलिजेंस तरीके से उसको नहीं समझाते. एबिलिटी टू लर्न तो उसमें है ही, इज इंटेलिजेंट. एबिलिटी टू लर्न उसमें है, क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न. तो जब आप कहते हैं वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब उसमें एबिलिटी ही नहीं है लर्न करने की. डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग कमेंट?
एबिलिटी टू लर्न है, लेकिन द ability to learn is different for different people. I can learn through music better, maybe you can learn in nature better. You can learn logically better, you can learn through words better. Another person learns by discussing, one person learns by self studies. सबकी इंटेलिजेंसेस अलग अलग होती है. तो एज अ टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि मेरा बच्चा किस टाइप का इंटेलिजेंट है. और अगर आपके लिए मुश्किल है, मैम कैसे समझेंगे कौन टाइप का इंटेलिजेंस, इसके लिए बहुत आसान टेस्ट है. लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा मैम किस टाइप का इंटेलिजेंट बच्चा है, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने ये बेसिक कुछ तरीके के इंटेलिजेंसेस हमें बताई हैं. आप इसका ध्यान रखिए. जैसे अगर आप नहीं भी जानते हैं कि कौन विजुअल है, कौन ऑडिटरी है, कौन रीड राइट लर्नर है, आप अगर ये जानते हैं कि 4 टाइप की लर्निंग है, हमें चारों तरीके से पढ़ाना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व. सिमिलरली इंटेलिजेंस टाइप्स इतने ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेसिकली ब्रॉडली इतने होते हैं. तो अगर आपको कुछ भी पढ़ाना हो क्लास में, तो थोड़ा सा जैसे नर्सरी में थोड़ी हम राइम्स कर देते हैं, थोड़ी सिंगिंग कर देते हैं, थोड़ा खेलकूद कर दिया, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर दिया, थोड़ा डिस्कशन कर दिया, थोड़ा बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए दिया, थोड़ा बच्चे को कुछ दिखा भी दिया, थोड़ा बच्चे को नेचर से रिलेट कर दिया कि चलो फील्ड में ले चलते हैं, आज थोड़ा पेड़ को ही क्लासरूम में ले आइए. अगर ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी याद रखेंगे, तो आप देखेंगे हर टाइप के इंटेलिजेंट बच्चे क्लास में ध्यान देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको उनके पसंद का खाना मिलेगा. मम्मी होती है ना, सबकी मम्मी दिवाली में, होली में सबके पसंद का खाना बनाती है, यस या नहीं, कि भाई बड़े को ये पसंद है तो ये भी बन गया, छोटे को ये पसंद है ये भी बन गया, उसको ये पसंद है ये भी बन गया. क्यों नहीं मम्मी एक ही खाना बनाती है? क्योंकि मम्मी चाहती है कि सब खुश हो, सब खाना खाएं. As a teacher, you have to also do the same thing. सबको खुश करना, सबको खाना खिलाना. Just give me a second. So you have to cook food. You have to cook food in the classroom. Your cooking food means teaching. आपके लिए खाना बनाने का मतलब है टीचिंग करना. So you have to cook food in your classroom in such a way that every child has got something to eat. अगर किसी बच्चे के पास खाना ही नहीं होगा तो हल्ला करेगा ही, डिसिप्लिन इश्यूज होंगे ही, लड़ाई झगड़ा होगा ही क्लास में, नॉइज ज्यादा होगा ही. तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है अपने क्लासरूम को अच्छा बनाने का. यानी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता. जब हम होमवर्क देते हैं तो कॉमन होमवर्क देते हैं, सारे बच्चे वो होमवर्क करते हैं. लेकिन कभी कभी हमें ये रियलाइज करना होगा एज अ टीचर कि मेरा कौन बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ उसको और मेहनत की जरूरत है, कहाँ उसको और हेल्प की जरूरत है, कहाँ उसको और असिस्टेंस की जरूरत है. और उसको आप इसी तरीके से कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दीजिए, कुछ स्पेशल वर्कशीट दीजिए, कुछ स्पेशल मेथड्स दीजिए. बहुत समय होता है ना, हम लोग किसी बच्चे को रोक लिया, बेटा तुम 2 मिनट बैठ जाओ मेरे पास, तुम्हें ये बताना है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट योर एवरी कस्टमर इज डिफरेंट. आप कपड़े सिलाने जाते हैं दर्जी के पास, तो आप कहते हैं ना मेरे शर्ट में ये वाला डाल देना, मेरे ब्लाउज में ये डिजाइन डालना, बिकॉज एवरी कस्टमर इज डिफरेंट. तो एक दर्जी अगर कस्टमर टू कस्टमर रिक्वायरमेंट को समझकर काम करता है, आप तो टीचर हैं, आपको भी समझना होगा कि 40 बच्चों में सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एक छोटी सी चीज है जिसका ध्यान रखें क्लास में, मैंने एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. बहुत तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, आपको अपनी सुविधा के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट करना है. नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनल वाले को ही फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे स्कूल में जैसे मैं ट्रेडिशनल अरेंजमेंट नहीं करती हूँ. मेरे यहाँ सबसे ज्यादा हॉर्स शू अरेंजमेंट है, रानावेज अरेंजमेंट है, ये दोनों मेरे यहाँ सबसे ज्यादा है. तो आप अपना अरेंजमेंट ऐसा कीजिए जैसे हॉर्स शू में सारे बच्चे फ्रंट पे बैठे, क्लस्टर में ग्रुप वर्क अच्छा कर सकते हैं, रानावे में सब बच्चे एकदम टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, स्टेडियम में भी सब बच्चे फील करते हैं कि मैं टीचर की नजर में हूँ. ठीक है. ट्रेडिशनल में क्या होता है, जो बैक बेंचर्स वाली प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा होती है. तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का ध्यान रखें अगर आप अपने क्लासरूम को ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्लीज टाइम का ध्यान रखिए. मैं भी टाइम का ध्यान रखने वाली, पता है मेरा समय खत्म हो रहा है. सो दिस विल बी द लास्ट स्लाइड दैट आई विल शेयर विद यू. ऑलवेज रिमेंबर दैट यू मस्ट बी अ गुड टाइम मैनेजर. बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं ना, घंटी बजने के बाद बोर्ड पे पूरा लिख देते हैं, उतार लेना.
घंटी बजने के बाद होमवर्क देते हैं, होमवर्क एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, होमवर्क लिखवा नहीं पाते, जल्दी भाग जाते हैं. They are poor time managers. So you have to be a great time manager. क्यों? जैसे इस एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ चीजों को चुना जो 1 घंटे में पॉसिबल है. उसी तरीके से आपको भी ये समझना होगा कि मेरी पढ़ाने की घंटी 40 मिनट की है, 50 मिनट की है, 30 मिनट की है, 45 मिनट की है, जो भी है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है वही हम सबसे पहले करेंगे. जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उसको बाद में करेंगे. जो नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है उसको पहले करेंगे. और जो नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट है, उसको करेंगे ही नहीं. लेकिन अभी हम पढ़ाते पढ़ाते 4 बार अपना फेसबुक खोलेंगे और उसमें लाइक देंगे, हार्ट सिंबल देंगे. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, फिर भी अगर हम कर रहे हैं तो I'm just wasting my time. So remember, there are 4 quadrants of time management: urgent, not urgent, important, not important. सबसे पहला, first priority is important and urgent. Second is non-important but urgent. अर्जेंट है तो हमको पहले करना ही, इंपॉर्टेंट हो चाहे नहीं इंपॉर्टेंट हो. अगर इंपॉर्टेंट हो तो सबसे पहले, नॉन इंपॉर्टेंट है तो उसके पहले. अगर अर्जेंट नहीं है तो ऑफकोर्स उसको बाद में करेंगे. इंपॉर्टेंट है तो, और अगर अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, काइंडली उस काम को करें ही नहीं. दैट इज द बेस्ट पार्ट. So efficient use of time in helping students achieve learning goals and making classroom a pleasant place for teachers and students. I think I'll stop here, but this important thing, remember, अगर आप वाकई लाइफ में एक सक्सेसफुल टीचर होना चाहते हैं, ग्रेट टीचर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं बच्चे आपकी बात सुने, जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में, फोकस ऑन पॉजिटिव डिसिप्लिन रादर देन पनिशिंग. पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हम उसको डिसिप्लिन जरूर करेंगे लेकिन रीइंफोर्समेंट देकर करेंगे, पनिशमेंट देकर नहीं. पनिशमेंट का मतलब ही होता है पेन, पेनाल्टी, जो किसी को नहीं अच्छा लगता. और पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब होता है कुछ नया उसको सिखाया, कुछ अच्छी चीज सिखाई, डिसिप्लिन भी पढ़ा कर बताया, टीच किया उसको डिसिप्लिन, ताकि मेरा बच्चा को पनिशमेंट की जगह जरूरत ही ना पड़े. सो रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. देयर आर मेनी टीचर्स जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वो बहुत टॉर्चर कर देते हैं बच्चों को, जैसे पीट देना, डांट देना बहुत बुरी तरीके से, उसको बेइज्जत कर देना क्लास में. यू डोंट डू ऑल दिस, क्योंकि एवरी पर्सन हैज गॉट सेल्फ एस्टीम. जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था, 2 साल के बच्चे का अगर आप पैंट खोल देंगे, व्हिच इज वेरी रॉन्ग, तो बच्चा रोने लगेगा या कुछ और भी कर सकता है, अग्रेसिव भी हो सकता है. सो सेल्फ रिस्पेक्ट को बच्चों की बनाकर रखिए, सेल्फ एस्टीम को बच्चों की बनाकर रखिए. इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, फोकस ऑन पॉजिटिव डिसिप्लिन. बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने के, सिर्फ चॉक एंड टॉक करने की जरूरत नहीं, लेक्चर मेथड की जरूरत नहीं. यू कैन गो फॉर क्लास डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, गेम, सिचुएशन एनालिसिस, डिबेट, स्टोरी टेलिंग, डांस, योगा, पपेट्री, रैप सॉन्ग मेकिंग, क्विज, मेडिटेशन, ड्रामा, सिंगिंग, क्वेश्चनर, पेंटिंग, कैंपेन, सर्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Use different facilitation methods. Don't go to the class and pick up a chalk and start writing on the board, or don't start giving a lecture. Children get bored. और boredom सबसे पहला वो चीज है जिसको अपने क्लास से उठाकर आपको बाहर फेंकना है. ये एलिमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग नहीं है. और अगर आप रोज एक ही काम करेंगे, रोज एक ही स्टाइल से पढ़ाएंगे, तो बच्चे बोर होंगे ही. और उसके बाद आप कितने भी नॉलेजेबल टीचर क्यों ना हो, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहेंगे. सो रिमेंबर, अगर आप चाहते हैं बच्चे आपकी बात सुने, बच्चे पढ़ें, बच्चे ध्यान दें, सबसे पहला एलिमेंट है अवॉइड बोर्डम इन योर क्लासरूम. आई थिंक दैट्स ऑल. अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका क्लासरूम कुछ ऐसा हो जाएगा. दिख रहा है आपको कैसा होगा आपका क्लासरूम? गुड इंस्ट्रक्शन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम एंड कंफ्यूजन इन द classroom, or everybody will be happy. It will be a great learning experience for you as well as for the children. Thank you so much. Now over to you for some questions. If you have any questions, please ask me. Participants can write questions in the chat box. If you have any questions, please come over. No questions means no understanding? No, they are writing thank you for wonderful session. I don't know why my chat box is not active today.
Have I done something wrong? Simple, ma'am. Please conclude the session. Ah, It's a now I nice can session. see. Now I can see. Yes, sir. I hope there is no any query, ma'am. Okay. Everyone is writing a wonderful session. Thank you, ma'am. 100% Thank you, ma'am. understanding. 100%. ये किसकी Great आवाज है? session. हिमांशु सर. हाँ, थोड़ी तबीयत खराब हो गई इसलिए आवाज गड़बड़। Right. Okay. Thank you. So thank you. I hope. Thank you, Thank you. participants. Yes. It was Yes, sir. again a wonderful session this time as well. And we have already shared the attendance link. You please fill it up to 6:15. I thank once again on behalf of the Aryabhata Sahodaya School Complex to our excellent resource person who has done wonders as well today as well. And we are hopeful for such sessions. So thank you so much, Mitali ma'am. Sir, the one suggestion I want to give, that can our members suggest some good topics or topics where they face problems? So can do. see, every time we are deciding a topic. Why Excuse don't me, you ma'am. give us some topic? Indra Prakash sir has written that I have a problem. Please unmute me. Sir, please No, text on the chat not box, unmute. please. He has If to, you have yeah, any problem, please text on the chat box. yeah. The online session has So not if to allow so the. if you have any any problem, any topic you want us to discuss, all the resource persons who are there available, you can suggest some topics, and we will definitely try to come up with some presentations on those topics. Yeah. Ma'am, So with there is one query. Ma'am, what can be done if a student doesn't follow my instruction? You have to change your method of teaching. If a student is not following you, see, the student is not dumb. ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बच्चा जानबूझकर नहीं फॉलो कर रहा है. वो फॉलो नहीं करना चाहता है, हो सकता है, या वो फॉलो नहीं कर पा रहा है. तो नहीं चाहता है मतलब वो बोर हो चुका है अपने क्लास से, तो आपको बोर्डम हटाना होगा. अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको अपना मेथड ऑफ टीचिंग चेंज करना होगा. फॉलो बार्क थ्योरी, विजुअल, ऑडिटरी, रीड, राइट, किनेस्थेटिक. उसके इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अप्लाई करिए. वो किस तरीके से सीख सकता है आराम से, वो अप्लाई करिए, जरूर सीखेगा. कोई बच्चा घर से ये सोचकर नहीं आता है कि आज मैं सीखूंगा ही नहीं. बच्चा ये सोचकर आता है कि मैं सीख नहीं पा रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग क्लास है, ये जरूर सोचता है. लेकिन ये मुझे नहीं लगता कोई बच्चा सोचकर आता है कि आज मैं सीखूंगा ही नहीं. बच्चे ऐसा नहीं सोचते, उनको मजा आएगा तो डेफिनेटली सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, 100% सीखेंगे. लेकिन वो मजा आपको क्रिएट करना होगा. दैट मैजिक हैज टू बी क्रिएटेड बाय द टीचर. You are the magician of the classroom. So create that magic. I hope I've answered. Yeah. yes. One with this- suggestion is there that the next topic should be experiential learning. Okay, We have done it. experiential learning so many times. So many times we have done. Still, if you want, we can always go ahead. So thank you. Let's conclude this session Yeah. here. And thank you, Mitali ma'am, once again. Thank you, sir. Thank you, Simple Ma'am. Thank you, Aryavat Sahodaya. Thank you, all of you. Thank you so much, ma'am. Good night, ma'am. Good night. Good night, all of you. Thank you, Himanshu sir. Thank you ma'am. all the participants for your active participation today. So thank you so much. Yeah, thank you.